Today, the Cultural Affairs Ministry had organized a Tiranga bike rally from Red Fort to Parliament, in which all MPs of all parties had been invited. Not once but time and again, they were told that they must participate because the Tiranga, our tricolour, is a symbol of the collective consciousness of 135 crore Indians. It is the symbol and the most pious instrument of our national freedom struggle, and therefore all MPs should have participated. But unfortunately, as per media reports, only the BJP NDA MPs participated, whereas members of parliament from Congress, from various opposition parties, boycotted or did not attend the event. Is the Tiranga only of one party, or is it of the entire nation? This kind of Rajniti, politics over issues of Rashtra-niti, where we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of our independence, where we are saluting our tricolour, this only reflects badly on certain people in the opposition, that in their hatred for one person, they will start hating all institutions of democracy and of our nationalism. Time and again, we have seen the same opposition members target the President of India. We have seen them target Parliament. We have seen them target Supreme Court, Election Commission, and all institutions of democracy, even on foreign soil. And now even the Tiranga is not spared from this petty Rajniti over Rashtra-niti. It is most unfortunate. Many people are asking that does the flag of Parivar Tantra mean more to them than the flag of Lok Tantra and the flag of India? If not the Indian flag that they will raise on 13th to 15th August, if not the Indian tricolour that they will display on their social media pics, if not the Tiranga bike rally, then should they have a rally with the flag of some other country? Some parties have an MOU with China. Do they want to raise the flag of that country? So it was avoidable, and this kind of politics should have been avoided. They should have all participated in a movement, in a moment where we are taking pride and saluting the national flag. एक बाइक रैली तिरंगा यात्रा जो कही जा रही है वो बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनविटेशन दिया गया था, चाहे वो अपोजिशन हो या बीजेपी लेड एनडीए हो, पर वहाँ पे अपोजिशन नहीं देखी गई। आज कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई थी रेड फोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक, जिसमें सभी सांसदों को, सभी दलों को न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि वो भी शामिल हो, क्योंकि तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का 135 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, हमारी स्वतंत्रता का सबसे पावन चिन्ह है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सिर्फ भाजपा और एनडीए के मंत्री जो है और सांसद जो है वहीं पहुंचे, और जो विपक्ष के कई नेता और दल है वो गायब रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रनीति के विषयों पर भी राजनीति की जाएगी? क्या एक व्यक्ति से, एक पार्टी से नफरत करते करते लोकतंत्र और जो हमारे राष्ट्रवाद के सबसे पावन चिन्ह है उनके खिलाफ भी अपमान की भावना और विरोध की भावना, ये द्वेष की भावना, ये दिखलाई जाएगी? कभी राष्ट्रपति पर अपमानित टिप्पणी, कभी किस प्रकार से संसद पर हमला किया जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाता है, सेना पर हमला बोल देते हैं, और आज तिरंगे को भी इस प्रकार से अपमानित करना, उसको बहिष्कार करना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 13 से 15 अगस्त के बीच क्या वो अपने घर के बाहर तिरंगा नहीं लगाएंगे? क्या वो अपने सोशल मीडिया पिक के डिस्प्ले पर तिरंगा नहीं दिखलाना चाहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष आज़ादी के, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है, क्या उसमें वो शामिल नहीं होना चाहेंगे? तो ये किस प्रकार की मानसिकता है कि परिवार तंत्र के झंडे को बुलंद करते करते देश के और लोकतंत्र के झंडे को और संस्थाओं के ऊपर बार बार हमला करना, उसका अपमान करना? और देखिए, कुछ एक पार्टियों का तो चीन के साथ मेमोरेंडम भी चल रहा है, MOU चल रहा है। तो सवाल तो कई लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि क्या भारत का झंडा पसंद नहीं आता, तिरंगा रैली पसंद नहीं आती, भारत का झंडा उनको नहीं ऊंचा करना है, तो कौन से उस देश का झंडा ऊंचा करना है जिसके साथ MOU है? तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। राष्ट्रनीति के विषयों को कम से कम राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए था विपक्ष के नेताओं को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।